Hello friends, today we are going to talk about divisibility rules that play a very important role in solving the questions from different exams. Most of the rules we have learnt in class 6 and class 7, but added with some new techniques, we will try to understand in today's video how to tackle the questions from this topic. So let's learn a few basics. How do we know whether a number is divisible by 2 or not? People tell me in general, sir, the last digit should be this and that. But my point is, you should always understand that the factor that decides whether a number is divisible by 2 or not is the last digit of that number. That means if we have a lot, I mean a big number, but the number is even or odd will be decided by the last digit only. So last digit of a number should be, it should be from among the given options 0, 2, 4, 6, 8. Okay, and you must have understood the rule that, for example, there's a number like 1, 2, 3, 7, 8, 9, 1. So this number is not divisible by 2 because the last digit 1 is not from this set. Okay, so the last digit of a number will tell you whether the number is divisible by 2 or not. For example, when you want to check the divisibility of a number by 4, how do you check the divisibility of a number by 4? Divisibility of a number by 4, you need to look at the last two digits, right? Last two digits of that number, and that should be from the set that I am writing here. The last two digits should be 00 or 04 or 08, 12, 16 dot 92, 96. So there are many possibilities, right? But the important point is that whether a number is divisible by 4 or not will be decided by the last two digits only. Okay, so for example, if we have a number like this 1, 2, 3, A, 5, 6, and somebody is interested whether this number is divisible by 4 or not. So you will just focus on the last two digits. In fact, the language should be not the last two digit, but the number formed by the last two digit. So as we know that 56 is a multiple of 4, 56 is a multiple of 4, we can understand very easily that the entire number is a multiple of 4. Okay, so these kind of rules will be applicable when you solve a lot of questions, right? So as this is only concept class, you need to understand the rule. To check the divisibility of 2, the concern should be last digit. To check the divisibility by 4, the concern should be last two digits. To check the divisibility of a number by 8, the concern should be last three digits. So this is how it goes. And there must be a very, very logical reason why is this happening. Okay. So if I talk about the number of possibilities,
that a number is divisible by 4 or not. So as we have seen that we have a list of last 2 digit numbers like this. तो अगर लास्ट 2 डिजिट में ये चीज रहती है तो इसका मतलब है कि नंबर जो है, आप देखेंगे इफ यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0 0 0 4 0 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96, तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो आपका आएगा 25. Okay, in the previous case when you were checking the last digit for the divisibility of 2, then we had only 5 options, 0 2 4 6 8. Okay, so total number of possibilities here is 5. Now how and why does this happen? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप किसी नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं और ऐसे 25 पॉसिबिलिटीज हमें दिखती हैं। इसके बाहर से कोई नया तरह का नंबर आप नहीं बना सकते विदाउट कंसिडरिंग दीज 25 पॉसिबिलिटीज। एंड सिमिलरली हैपेंस फॉर द लास्ट digit when you try to find whether a number is divisible by 2 or not। तो वैसे केसेस में देखेंगे आपके पास 5 पॉसिबिलिटी है और आप इसे बचपन से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 2 के लिए हम बस देखते हैं कि whether it is the last digit is even or not। so 0 2 4 6 and 8, 0 2 4 6 and 8 5 पॉसिबिलिटी, जबकि 4 के लिए जब हमने चेक करना शुरू किया तो हमारे पास 25 पॉसिबिलिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। नाउ हाउ डू यू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 8? सो वी हैव स्टडीड अबाउट 2 के लिए हमने क्या चेक किया था? लास्ट डिजिट। 4 के लिए क्या चेक किया? लास्ट 2 डिजिट। सो बाय एक्सटेंडिंग आवर गेस वी कैन से दैट 8 के लिए हम लोग चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। नाउ The rule tells us कि एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ABC 1 2 4 5 2. This is a number ABC 1 2 4 5 2 and you want to know whether this number is divisible by 8 or not. तो आप क्या करते हैं? आप जो है 452 को चेक करते हैं। ओके, सो आप 8 से डिवाइड करेंगे 452, राइट? और आप देखेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो ये नंबर जो लार्ज नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट को लेकर के जो नंबर बनाया गया वो 8 से डिविजिबल नहीं है। और इस रूल का एक फायदा भी है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस लार्ज नंबर को आप जो है 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए, तो आप जो है सिर्फ लास्ट 3 डिजिट पे ये ऑपरेशन करेंगे यानी डिवीजन वाला, और आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर यहां आया है वो एक्चुअल नंबर का भी रिमाइंडर होगा। फिर से मैं बता दूं, 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करना है। वही आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। तो आप आगे जब बढ़ेंगे 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, 32 के लिए लास्ट 5 डिजिट, और 2 का जितना पावर से आपको डिवाइड करना है लास्ट के उतने डिजिट्स आपके पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में आने चाहिए। ठीक है, एट से एक नंबर डिविजिबल हो उसके लिए उसके लास्ट 3 डिजिट का स्ट्रक्चर कैसा होगा?
वो कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको 000, a number that ends in 000 will be a multiple of 8, 008, 016, 024, dot 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 120, 128, 136, dot 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 288, 296, dot dot dot, and so on. So it will be like 992 will be the last possible values. So मैं बस ऐसे ही just out of curiosity आपको बताना चाहता हूं कि जब आप लास्ट 3 डिजिट, वो लास्ट 3 डिजिट जो 8 का मल्टीपल है, उसका जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे आपके पास जो है 125 यानी 125 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। 125 पॉसिबिलिटीज आ रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपने 2 का चेक किया तो 5 पॉसिबिलिटी आया, जब आपने 4 से डिविजिबिलिटी चेक करी तो 25 पॉसिबिलिटीज आए, जब आप 8 से चेक कर रहे हो 125 पॉसिबिलिटी आ रहा है। आखिर क्या रिश्ता है इनके बीच? इसको समझने के लिए हमें 5 के पावर्स के डिविजिबिलिटी के रूल समझने होंगे। हाउ डू यू नो whether a number is divisible by 5 or not? How do you know? So you'll be like jumping at your seat. Sir, बड़ा आसान है. The last digit should be 0 or 5. Right? Yes, I understand कि आप फिर से लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जो कंसर्न होगा वो लास्ट डिजिट होगा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कंसर्न होगा वो लास्ट 2 डिजिट होगा, जैसा कि 2 के साथ हुआ था। 2 में आप क्या चेक कर रहे थे? लास्ट डिजिट। 5 में आप क्या चेक कर रहे हैं? लास्ट डिजिट। 4 में आप क्या चेक कर रहे थे? लास्ट 2 डिजिट। 25 में लास्ट 2 डिजिट। 8 में आपने क्या चेक किया? लास्ट 3 डिजिट। 125 में लास्ट 3 डिजिट, एंड सो ऑन। करेक्ट है? तो जब कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो उसका लास्ट डिजिट जो है 0 और 5 में एंड करेगा। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि 2 ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर से वही रिश्ते की बात मैं करूंगा, क्योंकि जब 2 का हम चेक कर रहे थे तो उस केस में हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज थे, 0, 2, 4, 6, 8। जब हम 5 का चेक कर रहे हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। 2 के केस में 5 पॉसिबिलिटीज, 5 के केस में 2 पॉसिबिलिटीज, 4 के केस में 25 पॉसिबिलिटीज, 25 के केस में 4 पॉसिबिलिटीज। आखिर रिश्ता क्या है? आखिर रिश्ता क्या है? अच्छा, हाउ डू यू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर बाय 25? हाउ डू यू डू दैट? How do you check the divisibility of a number by 25? Again, the focus is last 2 digits. So if you take a number, a large number, and you want to know whether this number is divisible by 25 or not, then you focus on the last 2 digits. Then you focus on the last 2 digits. Right? तो क्या क्या लास्ट 2 डिजिट में व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज? क्या होने से बात बन जाएगी? लास्ट 2 डिजिट में ऐसा क्या हो जाए कि नंबर जो है वो 25 का मल्टीपल हो जाए? तो वहां पे डबल 0 होने से काम चलेगा, 25 होने से काम चलेगा, 50 होने से काम चलेगा, और 75 होने से काम चलेगा, यानी के 4 पॉसिबिलिटीज। 25 के 4 पॉसिबिलिटीज, 4 के 25 पॉसिबिलिटीज। ओके, रिश्ता है। सिमिलरली आप चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर बाय 125। 125 का चेक करने के लिए आप देखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट
3 डिजिट्स। जब आप उसको देखेंगे तो वो नंबर कुछ इस तरह होना चाहिए, या तो 000 हो, या 125 हो, या 250 हो, या 375 हो, या 500 हो, या 625 हो, या 750 हो, या 875 हो। तो आपने देखा हमारे पास आ गया फिर से 8 पॉसिबिलिटीज। जिससे डरते थे वही बात हो गई, है ना। तो रिश्ते के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये वैल्यूज याद कर लिया, अगर आप ये वैल्यूज याद कर रहे हैं, तो आपको डबल एडवांटेज है। ये सारे लिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स हैं जो किसी नंबर के आखिर में होंगे अगर वो नंबर 125 का मल्टीपल है। एक नंबर जो 125 का मल्टीपल होगा उसके एंड में जो 3 डिजिट हैं वो ऐसे होंगे, या तो 000 होंगे, या 125 खुद वहां होगा, या 250 होगा, या 375 होगा, या 500 होगा, या 625 होगा, या 750 होगा, या 875 होगा। नाउ अगर मैं यहां पर डेसिमल बिठा दूं और यहां परसेंटेज लगा दूं, यहां डेसिमल बिठा दूं, यहां परसेंटेज लगा दूं, यहां डेसिमल बिठा दूं, तो आपको एक फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? दिस इज योर 1/8, दिस इज योर 2/8, this is your 3/8, this is your 4/8, this is 5/8, this is 6/8, and this is 7/8. So the moment you are memorizing the last 3 digits of a number that are multiple of 125, you also memorize a few values of percentage. So sometimes it is very, very difficult to remember what is the value of 3/8 in terms of percentage. So you can always have this value at your disposal so that you can solve the questions quickly. Okay. Now I will talk about the relationship between 2 and 5, 4 and 25, 8 and 125, and so on. So you must have observed that there's something between 2 and 5, right? What is that? 2 into 5 is 10, 4 into 25 is 100, 8 into 125 is 1000. Correct? So this is why it is happening, because our number system is a decimal system. Decimal system means the base system is 10. अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि 2 के केस में 5 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और 5 के केस में 2 रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में बाकी सारे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सीखेंगे। थैंक यू।